اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے تتوادھان میں دریا گنج استھت ذائقہ ریسٹورنٹ میں اردو زبان مقبول بھی مظلوم بھی کتاب کا وموچن کیا گیا۔ کارکرم میں مکھیہ اتھھی کے روپ میں پروفیسر شہباز رسول نے شرکت کری، جبکہ کارکرم کی ادھیکشتا وریشٹھ کانگریسی نیتا میم افضل نے کی۔ اس موقع پر پرمکھ اسلامک اسکالر پدم شری پروفیسر اختر الواسع، اس کے علاوہ ماجد دیوبندی، وریشٹھ پترکار معصوم مراد آبادی بھی موجود رہے۔ کارکرم کا سنچالن کتاب کے لیکھک اور وریشٹھ پترکار سہیل انجم نے کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس موقع پر کس طرح سے سارے اتھھی جو ہیں یہ موجود رہے اور اس کتاب کو جو ہے وموچن کیا گیا۔ آپ سنتے ہیں کیا کہتے ہیں سارے اتھھی اردو زبان کو لے کر۔ مظلوم بھی مقبول اس معنی میں کہ اس کے چاہنے والے جو ہیں ان کا حلقہ بڑھ رہا ہے، نئی بستیاں اردو کی دنیا میں آباد ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی اپنی جگہ طے ہے کہ سرکار کی بے رخی اور اردو والوں کی بے توجہی جو ہے اس نے اسے مظلوم بھی بنا رکھا ہے۔ یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ زبانیں بہرحال سرکاروں کے سرپرستی میں زندہ نہیں رہتی ہیں، اپنے بولنے والوں کی بل پہ زندہ رہتی ہیں۔ اردو کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اردو کو پروان چڑھانا چاہیے، فروغ دینا چاہیے اپنے بچوں کو۔ اگر ہم اردو میڈیم اسکولوں میں نہیں پڑھاتے ہیں تو کم سے کم ایسے اسکولوں میں تو پڑھائیں جہاں تھرڈ لینگویج کے طور پر اردو پڑھائی جاتی ہے۔ جی ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھانے کے لیے مولوی تو رکھ سکتے ہیں، قرآن مجید پڑھانے، ناظرہ پڑھانے کے لیے، اردو پڑھانے کے لیے بھی اسی طرح رکھیں۔ یہ اس کے خلاف تو میرے خیال میں بیوروکریسی کا ایک بہت بڑا رول ہمیشہ رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پچھلے 8 سال میں اردو اسکولوں کے ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں، لگائے بھی نہیں جا رہے۔ دلی اس کی زندہ مثال ہے۔ دلی میں جتنے اردو ٹیچرز ہیں وہ یا تو اردو اکیڈمی پرووائڈ کرتی ہے یا کوئی اور ادارہ اس کو پرووائڈ کر رہا ہے، NCPL، اور NCPL کو بھی انہوں نے ایک طرح سے اپاہج بنا دیا ہے، کیونکہ کاؤنسل ہی نہیں بنا رہے۔ تو حالت تو خراب ہے، لیکن اس کے لیے بہت بڑی حد تک حکومتوں کو ذمہ دار بتانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تلاشی بھی لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اردو کے لیے کتنا سیریس ہیں، کتنا کام کر رہے ہیں۔ کس حد تک مانتے ہیں کہ اردو مقبول بھی ہے اور مظلوم بھی؟ دونوں باتیں بالکل صحیح ہیں۔ مقبول تو ہے، زبان کے اندر تو دم ہے، تبھی تک آج بھی تمام تر سازشوں کے باوجود یہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ اگر یہاں اس میں کہیں کمی ہوگی تو دوسری جگہ ابھرے گی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش جو اردو کا سب سے بڑی ایک زمین ہو سکتی تھی، وہاں اردو کا ایک بھی اردو میڈیم اسکول نہیں ہے آج۔ یہ BJP کی سرکار میں نہیں ہے، یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے وہاں پہ۔ رہی صحیح کسر جو ہے وہ باقی لوگوں نے پوری کر دی ہے۔ جو مدارس کے ذریعے اردو زندہ رہتی ہے ان پر بھی جو آسام کے اندر اور اتر پردیش کے اندر جس طرح سے ان کے خلاف کام کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اویئر تو ہم اچھی طرح سے ہیں۔ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کرنا کیا چاہیے؟ اس میں احتجاج کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل تو احتجاج کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ جس حد تک کر سکتے ہیں وہاں کریے، لکھ کے کیجیے، سوشل میڈیا پہ جائیے، یہ سب جگہ ہیں کام کرنے کے لیے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ احتجاج کرنے نہیں دیا جاتا، اور اگر کریں تو پھر اس کو دوسرا رنگ بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حالات سے لڑنا جو ہے وہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کہا بھی تھا کہ اردو عوام کی زبان ہے، تو جس ملک میں، جس خطے میں وہاں کے عام لوگ جو زبان بولتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں، جو زبانیں بولی نہیں جاتی کتابوں میں رہ جاتی وہ ختم ہو جاتی۔ تو اس اعتبار سے اردو تو ختم نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ اردو کے معاملات جو ہیں جس طرح سمٹتے جا رہے ہیں اس کی بہت سی وجہ ہے، اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اردو کو بڑا خطرہ ہے، اردو ختم ہو جائے گی، تو ہم صرف اپنے ملک کے سیناریوں میں دیکھتے ہیں، لیکن اردو کا دائرہ پوری دنیا میں
दुनिया के बेशतर ममालिक में उर्दू बोली जाती है। अभी आप हिंदुस्तान से बाहर जाइए, वहाँ जाके बात कीजिए, आप उर्दू बोलेंगे 10 लोग उर्दू समझने वाले मिल जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी बात कोई ना समझे। तो ये यकीनन बड़ी बात है। तो ये इस जुबान की अपनी ताकत जो उसके अंदर मौजूद है, जो उसको ख़त्म नहीं होने देगी। लेकिन ये ज़रूर है कि उर्दू की बहुत सी चैलेंजेस है, और वो उर्दू वालों की तरफ से भी है, दूसरे लोगों की तरफ से यकीनन ज़्यादा है। अभी इन चीज़ों का जिक्र हुआ, सरकार तवज्जो नहीं दे रही है उर्दू पे जिस तरह देनी चाहिए। उर्दू के भी बहुत से लोग वो नहीं कर रहे जो नहीं करना चाहिए। उर्दू वालों के घरों में उर्दू उस तरह से बोली और पढ़ी नहीं जाती। असल में हमें एक पैगाम देना था कि लोग गाफिल ना रहें। उर्दू ज़बान जो है हकीकत में बहुत मकबूल है, और मकबूल इस लिहाज से भी है, इसके नगमे लोग, नौजवान लोग, आज भी नई नस्लें बड़े पैमाने पर गुनगुनाती रहती हैं, और प्यार की ज़बान है, दुनिया जानती है। ये एक जो है डायलॉग की ज़बान है। लोग समझते हैं कि इसमें हमारा कैरियर है, इससे हमारी शख्सियत निखरती है। ये सब बातें इसमें हैं माशाल्लाह। हमने कहा इस ज़बान को बचाने के बारे में थोड़ा सा सोचे लोग। बचाने से मुराद इतना ही है कि इसका लिखा पढ़ा जाना वो ज़रूरी है, यानी रस्म ख़त का बरकरार रहना ये इंतहाई अहम है। और इसमें जाहिर है कि सरकार की सरपरस्ती के बगैर कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहती। आज जो है देखिए, कम से कम दर्जनों फिल्में ऐसी हैं जिनकी ज़बान और डायलॉग सब उर्दू है, लेकिन उसे हिंदी के नाम पर दिया जा रहा है सर्टिफिकेट। तो ऐसा नहीं है कि उर्दू के बगैर फिल्म इंडस्ट्री जिंदा रहेगी, या हमारा भारत जो है अपने आप को गौरवान्वित करेगा, यानी फख्र का एहसास करेगा, राष्ट्र का एहसास करेगा, उसी वक्त करेगा जब उर्दू को रस्म ख़त के साथ जिंदा रखेगा। सुहेल अंजुम साहब बहुत ही नामवर और बहुत ही बुजुर्ग सहाफ़ी है। उनकी किताब जो है उर्दू ज़बान मकबूल भी और मज़लूम भी, इसका रस्म इजरा हुआ, और इसमें उर्दू के हवाले से बहुत सारे मज़ामीन जो उनके हैं उनको इसमें जमा किया गया है। और उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हिंदुस्तान की जो ज़बान उर्दू है, जिसको तमाम लोग बोलते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोग इस ज़बान को बोलते हैं। आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसको बोलने और इसको समझने वाले लोग हैं। तो उर्दू को आगे लाने के लिए हम सब लोगों को उसमें ताउन करना चाहिए, आवाम को भी इसको पढ़ना चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि वो हिंदी, उर्दू और तमाम इलाकाई ज़बानें जो हैं सबको एक साथ आगे बढ़ने के लिए उसको ताउन करें। और कभी कभी हमें सुनते हैं कि उर्दू ज़बान जो है वो एक ख़ास धर्म की ज़बान है। ये सब बातें बहुत ही गलत है। उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान है। और अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस ने कुछ अल्फाज जो हैं वो थानों को भेजे हुए थे और कहा कि आप उर्दू के इन अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, ये आम फहम अल्फाज नहीं है। मुझे लगता है ये सब गलत चीज़ें हैं। हिंदी सिनेमा को ले लीजिए, हिंदी गाने को ले लीजिए, उर्दू के बगैर कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। तो हिंदी और उर्दू जो है वो सगी बहनें हैं। पानी में लाठी मारने से उसके धार अलग नहीं हो सकते, उसी तरह से हिंदी और उर्दू को अलग नहीं किया जा सकता। एक अच्छा उर्दू जानने वाला एक अच्छा हिंदी जानने वाला भी है, एक अच्छा हिंदी जानने वाला एक अच्छा उर्दू जानने वाला है। इसलिए ज़बानों के बीच में हमाहंगी पैदा करने की ज़रूरत है। उसके बीच में बिगाड़ और झगड़ा और तसादुम और लड़ाई पैदा करने वाले सच्चे हिंदुस्तानी नहीं हैं। देखिए, हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान की जो सूरत हाल है उसको इस किताब में बयान किया गया है। सूरत हाल यूँ है कि इसके दो पहलू हैं। एक तो जो मामला है वो हौसला बख्श भी है, हौसला अफजा भी है, उम्मीद अफजा भी है। इसका दूसरा पहलू यह है कि कुछ थोड़ी मायूसी भी है। कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू ज़बान ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो मायूसी का इजहार करते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि उर्दू ज़बान कभी ख़त्म नहीं होगी। उर्दू ज़बान जिंदा रहेगी, और उर्दू ज़बान जब तक उर्दू के बोलने वाले मौजूद हैं, उर्दू के रस्म ख़त लिखने वाले मौजूद हैं, उर्दू ज़बान भी जिंदा रहेगी, उर्दू सहाफ़त भी जिंदा रहेगी। इस किताब में दोनों पहलुओं को दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से उर्दू के चाहने वाले लोग मौजूद हैं, उर्दू की दिलकशी किस तरह से लोगों को अपनी जानिब खींचती है, और उर्दू बोलने और उर्दू सुनने और उर्दू समझने वाले लोगों की तादाद किस तरह से बढ़ रही है। इस पहलू को पेश किया गया है। और फिर उसके बाद ये भी देखा गया है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ख़ासतौर से रेडियो है, टीवी चैनल है, आजकल यूट्यूब चैनल्स वगैरह में भी उर्दू के अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं क्योंकि वो आसानी से लोगों की समझ में आ जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है, जिसका जिक्र मैंने इसके पहले किया, कि चूँकि उर्दू की तालीम खत्म होती जा रही है, खुद उर्दू हल्के और उर्दू के जो इलाके थे वो उर्दू को
छोड़ते जा रहे हैं, तो वो थोड़ी सी मायूसकुन सूरत हाल है। लेकिन हम समझते हैं कि अगर उर्दू वाले अपनी जिम्मेदारी अदा करें और उनका जो फरीज़ा है उसको निभाने की कोशिश करें तो ये मायूसकुन सूरत हाल भी बदल सकती है।